فون ریزیوم پر ناظرین محترم آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. میرا نام فیاض جمال بٹ ہے. آج ہم لا رہے ہیں جو دور دراز علاقوں میں طلبہ و طالبات جن کو پڑھنے کا شوق ہے اور ان کے والدین کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سری نگر یا دور دراز علاقوں میں بھیجے تاکہ پڑھانے کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ضلع کلگام میں ہی ایک ایسا کوچنگ سینٹر جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. گزشتہ 1-2 سالوں میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ان کی اس محنت کو میرا سلام. جس طرح وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں انہوں نے اب 11th 12th نیٹ JEE IIT طلبہ و طالبات کے لیے ایک آفر لایا ہے. یعنی ان بچوں کے لیے جن کے پیرنٹس کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے تاکہ وہ بچوں کو پڑھائیں, اب انہی بچوں کے لیے ایک خصوصی آفر ٹارگیٹ نیٹ نیئر لیڈز ہائر سیکنڈری اسکول کلگام پہنچا رہا ہے. آئیے ڈائریکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. اور یہ ٹارگیٹ نیٹ ہے اور بس یہی ہماری بھی دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات یہاں سے نکلے, زیادہ سے زیادہ انجینئرز نکلے, زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز نکلے, زیادہ سے زیادہ IAS KS آفیسرز نکلے, ضلع کلگام سے جو ضلع کا نام جو ہے روشن کریں. اور اندر چلتے ہیں, اندر ڈائریکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے اور آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ آ سکتے ہیں. میری کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ وہ اکٹھے دونوں رہیں, ساتھ ساتھ چلیں کیونکہ آپ یہ میڈیم جو ہے دیکھ رہے ہیں. اور بس مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نالج جو ہے پہنچنی چاہیے. جناب یہ آفس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ٹارگیٹ نیٹ کا آفس ہے اور ٹارگیٹ نیٹ کے آفس کے حوالے سے بات کریں تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہاں پہ اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ دوستوں تک بھی پہنچائے گا. اور بار بار میں کہتا ہوں, کہتے ہیں کہ زندگی کچھ اور شے ہے, علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوز جگر ہے, علم ہے سوز دماغ. اور والدین کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے لیے بہت کچھ کیا جائے. اور میں سلام کرتا ہوں ٹارگیٹ نیٹ کو جنہوں نے یہ قدم لیا ہے. سننے میں آیا ہے کہ یہ ان بچوں کے لیے, ان طلبہ و طالبات کے لیے ایک آفر لا رہے ہیں جس میں جو والدین حضرات اتنا فیس پرووائڈ نہیں کر پاتے ہیں انہیں کے لیے کیا آفر ہے. ڈائریکٹر ٹارگیٹ نیٹ سے بات کرتے ہیں. مظفر صاحب السلام علیکم سر. ہاؤ آر یو سر؟ بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ. سر تھوڑا سا باہر نکلیں گے, یہاں پہ بات کریں گے. اور ناظرین محترم ایک اچھا آفر آپ کے لیے, لیکن شیئر بھی کیجیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ضلع کلگام سے طلبہ و طالبات وہ زیادہ سے زیادہ نکلے. مظفر صاحب سب سے پہلے کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, تھوڑا سا بتا دیجیے گا. سننے میں آیا ہے کہ جو دور دراز علاقوں میں ہمارے طلبہ و طالبات ہنر ہے وہاں پر, لیکن ان کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا ہے. بالکل. ٹارگیٹ نیٹ ان بچوں کے لیے کیا کچھ لا رہے ہیں جن کے گھرانوں سے اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ والدین اپنے بچوں کو دور دراز علاقوں میں بھیجیں پڑھانے کے لیے. تو ٹارگیٹ نیٹ ان بچوں کے لیے, ان پیرنٹس کے لیے کیا خوشخبری لا رہا ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سبھی فالوورز کو, دیکھنے والوں کو سلام, پیار بھرا سلام. وعلیکم السلام. ٹارگیٹ نیٹ کلگام کا جو پہلے سے ہی ہے کہ یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی, اب ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں پیرنٹس کی, کیونکہ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو ایک برڈن رہتا ہے پیرنٹ کے اوپر کہ اس کی ایجوکیشن کیسے چلانی ہے اور اس کو ایک چینلائز طریقے سے آگے بڑھانا ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے جو ہمارے پاس آلریڈی بچے پڑھ رہے ہیں یا لاسٹ ایئر ہو یا اس سال ہو, تو ان پہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. وہ آپ فیڈ بیک بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے بچوں کا. اب رہی بات جو سر نے, فیاض صاحب نے ہمیں ایک بات پوچھی کہ آپ دور دراز والے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں جو فار فلنگ ایریاز ہے. سب سے پہلی چیز ان کے لیے مشکلات یہ آتی ہے کہ ان کا ٹرانسپورٹ, وہ بہت بڑی پرابلم ہے بچوں کے لیے, ٹرانسپورٹ. نمبر 2 ان کی اکوموڈیشن جو ایشوز آتے ہیں. اور نمبر 3 سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم بھی ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ڈفرنٹ سیکٹرز آف سوسائٹی ہیں, الگ الگ لوگ رہتے ہیں اور الگ الگ آمدنی ہے لوگوں کی. سارے ایفرٹ نہیں کر پاتے ہیں, چاہے سری نگر جانا یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنا, کہیں پہ بھی. تو ہم نے ایز اے ٹیم سوچ کے ایک مشورہ کیا کہ جو بھی فار فلنگ ایریاز میں ہیں, دمہال سے اوپر سائڈ میں, ٹھیک ہے, یہاں سے دیوسر کے سائڈ میں, شوپیان کے سائڈ میں, جو بھی دور دراز علاقے ہیں جو ایفرٹ نہیں کر پاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی کہ جو کلگام ہے اٹس آلویز بین اے فرٹائل لینڈ, یہ ایک فرٹائل لینڈ ہے, اور ان فرٹائل لینڈس کو وہ ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے.
उनके लिए हमने जो बाकी बच्चे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हमारे पास आते हैं उससे 30% फी लो कर दिया है। पहली चीज, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज, अब अगर बच्चे देख रहे हैं कि सर हमें फिर फी कितना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हमारा फी जो यहाँ पे होता है कुलगाम में यही होता है 35,000, तो हमने ये डिसाइड किया है कि उनके लिए सिर्फ 20,000 फीस हम रखेंगे, 20 टोटल 20,000। उसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, उसमें इनको फिजिक्स के एटलीस्ट 3 टीचर्स पढ़ाएंगे, अच्छा, केमिस्ट्री के 3 टीचर्स पढ़ाएंगे, बायो के 4 टीचर्स और मैथमेटिक्स के 2 टीचर्स, चाहे वो 11th हो, 12th हो, नीट हो, IIT हो, JEE हो, प्लस हम उनको जो स्टडी मटेरियल हमारे पास है ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल उनको फ्री में दे देंगे इसी में। अच्छा। ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है, ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल उनको फ्री देंगे। उनको किसी भी जो किताबें हैं उनको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, प्लस जो उनके बैग वगैरह है, जो जितनी भी चीजें उनको लगती है इक्विप करते हैं हम उनको उस नीट या JEE के या 11th-12th के लिए जितनी भी उनको चीजें वो हम इसी पैकेज में पूरा फ्री दे रहे हैं, ओनली 20,000 रुपीज। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए एक बार फिर आपको सलाम, क्योंकि मैं जानता हूं जब से आपसे मुलाकात हुई है आज से 5 साल पहले, मैं जानता हूं आपसे और आप चाहते हैं कि जिला कुलगाम की ये जो सरजमीन है ये जरखेज है और गाइड करने की जरूरत है। अच्छी बात है, आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, जहां पे 35,000 30,000 फी लेते हैं आप जो है उसमें भी कंसेशन दे रहे हैं, और खासकर जो मटेरियल आप प्रोवाइड करें। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि जिस तरह आपने बात की है, चाहे दिवसर, कोंड, शोपियान के जो पहाड़ी इलाके हैं, नूराबाद है, अहरबल है, DK मरग है, मुझे एक चीज बता दीजिएगा कि हर कोई बंदा इसमें आ सकता है या इसमें कोई कैटेगरी? नो कैटेगरी। सबसे पहले अगर बंदा ओपन मेरिट का भी है, अच्छा, ओपन में दूर दराज का है, हमारा मेन कंसर्न है दूर वाले बच्चों को चैनलाइज करना। अच्छा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपकी नजर में कोई ऑर्फन बच्चा उसको हम फ्री पढ़ाते हैं, ये लास्ट ईयर, हाँ ये लास्ट ईयर भी हमने किया है, इस साल भी कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्फन बच्चा है उसको फ्री पढ़ा रहे हैं। जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हमारे लोकल आते हैं सर, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जिनके पास नहीं है वसत करने की, उनका ऑलरेडी फी रिलैक्स्ड है सर। ये वो बच्चे हैं जो एक तो मार्जिनलाइज्ड एरिया से हैं, फार फ्लंग एरिया से हैं, रिमोट एरिया से हैं, जिनमें पढ़ने का शौक है। मैं कह रहा हूं एक तो ये 20,000 में इनको सारा का सारा मटेरियल, इतने हाईली डेडिकेटेड टीचर्स, मतलब मैं कह रहा हूं मेरा कैरियर है 12 साल का, जो हमारी यहाँ पे टीम है, मैंने ऐसी टीम लाइफ में कभी जमा नहीं की है। दिस इज फॉर द मतलब लास्ट ईयर और इस साल मैं बहुत मुतासिर हूं। ऐसे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स की फैकल्टी मिल रही है, ये कहां पे हो रहा है? ये तो कहीं भी नहीं हो रहा, सिर्फ टारगेट नीट में हो रहा है। और प्लस जो बच्चे हैं, मैं ये चाहता हूं कि एक अंदर से बचपन से एक शौक होता है किसी इंसान का, तो मेरा शौक बचपन से रहा है कि पढ़ाने का। अब पढ़ाने के साथ साथ मैंने एक और चीज सीखी है, काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे को काउंसिल करना कि इसका जो गोल है वो क्या है, तभी जाके तब कल को हमारे पास इतने बड़े डॉक्टर्स पैदा होते हैं, कल को बहुत सारे डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, या आप देखिए सिविल सर्विसेज में KS IAS ऑफिसर्स, तो वो एक्स्ट्रा काउंसलिंग भी हम इनको यहीं पे दे रहे हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट का आता है, हमारा मेन क्राइटेरिया पिछले साल भी ये फी नहीं रहा है। जब तक हम एज अ टारगेट नीट ग्रुप, जो टारगेट नीट ग्रुप यहाँ पे वर्क कर रहा है कुलगाम में, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को कुलगाम में या साउथ कश्मीर में रेज नहीं करेंगे, बस अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए, तब तक हम रुकने वाले नहीं। हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जब तक स्टैंडर्ड्स रेज नहीं होंगे। ये तो छोटा सा ऑफर है। आप बच्चा जब यहाँ पे आता है, क्योंकि ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जिनके पास डिजिटल बोर्ड्स है, आप कहीं पे नहीं देखेंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस है, बच्चा अंदर आता है तो RFID में पंच इन करता है, तो बच्चा पहले ही फादर को मैसेज जाती है कि आपका बच्चा इंस्टीट्यूट में आ गया, और निकलेगा टाइम, उस टाइम भी इसको मैसेज जाती है कि अभी बच्चा बाहर निकला। और प्लस हमने इस साल एक हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल भी ले बनाया है अपना। हमारा गर्ल्स हॉस्टल है जो बिल्कुल 200 मीटर्स यहाँ से है और सेफ रास्ता है यहाँ पे बिल्कुल में। उसमें तकरीबन हमारे पास 20 रूम्स है, उनके अंदर किचन भी है, उनके अंदर वॉशरूम भी है अटैच, एक बड़ी जबरदस्त वाईफाई भी है, वाईफाई भी 24/7 CCTV सर्विलेंस भी है। बहुत अच्छी बात। ये सारी उस पे भी हम टूर कराएंगे, लेकिन आप बेहतरीन काम कर रहे हैं जिस तरह मैंने, क्योंकि इसके बाद पिछले साल भी हमने एक टूर कराया था इस टारगेट नीट के हवाले से। मकसद यही था कि जो बच्चे यहाँ से दूर जाते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं, जबकि आपके पास अगर टारगेट नीट या दीगर जो कोचिंग सेंटर्स, अगर आपके पास काबिल तरीन जो असातिज़ा किराम दस्तियाब है। शौकत साहब, बात तो आगे से भी करेंगे क्योंकि अब सेशन शुरू हो चुका है। बिल्कुल। एक चीज़ बता दीजिएगा जाते जाते, क्या मैसेज रहेगी स्टूडेंट्स के? सबसे पहली चीज़, मैं एज अ डायरेक्टर, एज अ टीचर, एज अ मेंटर एंड अ गाइड, मैं सारे बच्चों को, सारे बच्चे अल्लाह ताला ने एक जैसे पैदा किए हैं।
इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे, फलानी का IQ ठीक है, फलानी का IQ कम है, ऐसी चीज़ों में ना पढ़े। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, सेम चीज़ हर किसी जगह में है, हर किसी मैटर में, हर किसी इंसान में। डिफरेंस कहाँ पे आती है? डिफरेंस आती है जान मेरी कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, सही बात। आप अपनी लाइफ को कहाँ पे सुधार रहे हैं और अल्लाह ताला बचाए कहाँ पे बिगाड़ रहे हैं। अगर आप काउंसिल प्रॉपरली है, आप डिटरमिन्ड है, आप कमिटेड है एक प्रॉपर गोल की तरफ, तो आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। सही बात। दूसरी चीज, मैं आप बच्चों को बोल रहा हूं कि आप ऑप्शंस में ना पढ़े बेटा, ये सबसे बड़ी बात है। क्या होता है, जैसे ही हम देखते हैं कि 11th का बच्चा, 10th का बच्चा हमेशा एग्जाम में 90% लाता है, 95% आता है, लेकिन जैसे ही बात आती है नीट जेई की, बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता। वही सिलेबस तो है, दैट मीन्स एक गैप बन चुकी है 11th बोर्ड्स और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और प्लस अब दूसरा मसला ये है कि जो नीट है, 11 12 तो चलो इसमें 20,000 हमने फीस किया है, जो नीट है बच्चों को तकरीबन 1 लाख रुपए फी भरना पड़ता है। हम कह रहे हैं कि आपकी वसादत से हम नीट वाले बच्चों को भी 20,000 रुपीज पे पढ़ाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमारा एक ही है। देखिए हमारे पास अभी भी 11th के 3 सेक्शन है, 12th के 2 सेक्शन है, मतलब हमारे पास हमेशा लास्ट ईयर भी 300 बच्चे थे, इस साल भी 300 बच्चे हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहा हूं कि जो घर बैठे पढ़ने के लिए नहीं जा पाते, बिल्कुल जो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे कल पूछेगा कि आपने इनके लिए क्या किया, तो मैं हाजिर जवाब हूं उस टाइम कि मैं ये कर रहा हूं। लव यू ब्रदर, लव यू। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और शौकत साहब को मैं, हालांकि मैंने पहले ही कहा कि 5 सालों से मैं इसको जो है देख रहा हूं, वाच कर रहा हूं, और हमेशा यही दिल में दर्द है कि फयाज साहब कुछ करना चाहते हैं। और मैं बहुत खुश, इमोशनल हो रहा हूं इस वजह से, जिस तरह बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे भी बात करते हैं, फयाज साहब हमारे बच्चे में भी वो काबिलियत है, पढ़ना चाहता है, लेकिन जो फी बहुत ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से हम ना श्रीनगर भेज सकते ना कहीं और। लेकिन शौकत साहब ने ये ऑफर लाया और जिस तरह उन्होंने मैसेज दे दी है कि सारे बच्चे जो हैं एक जैसे होते हैं, अब ये एक उस्ताद पे है, एक पेरेंट पे है, एक समाज पे है कि वो बच्चे को किस जानिब ले जाएं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जिस तरह आप काम कर रहे हैं शौकत साहब, हमेशा जहां पे भी अच्छा काम हो, फयाज जमाल हमेशा दस्तयाब रहता है। और मैं यही कहूंगा कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, और खासकर जिला कुलगाम के लिए, कौम के लिए आप जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं ये आप कंटिन्यू करें। इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में एक टूर जरूर कराएंगे। हाँ, साथ में एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्योंकि फार फ्लंग एरियाज है, अब कोई बच्चा है जो कहना चाहता है कि सर हॉस्टल में नहीं रहूंगा, क्योंकि एक तो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, दूसरा बॉयज हॉस्टल है। अब बच्चे होते हैं कि सर वो यार उनका क्या होता है, एक घर वालों के साथ ज्यादा लगाव होता है, तो उनके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास तकरीबन 12 मैजिक्स होती हैं जो डिफरेंट एरिया से, अभी हमारे बीबाग साइड से आ रही हैं, या बहुत सारे इलाकों से हमारे पास मैजिक्स आते हैं। तो ये पहला कोचिंग सेंटर है जिसके पास ट्रांसपोर्ट भी है, हॉस्टल भी है, यहाँ पे 24/7 CCTV सर्विलेंस भी है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स भी है, RFID है, और मैं कितना बोलूं आपको, बस सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह इन्होंने कहा, और खासकर जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, इन्हें हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए यही कहेंगे कि आपके लिए एक हॉस्टल की फैसिलिटी भी यहाँ पे जो है दस्तयाब है, आप आ सकते हैं। और अगर आप टारगेट नीट में पढ़ना चाहते हैं, खासकर वो बच्चे जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और उनके वालिदैन ये कहते थे कि हमारे बच्चे, ये जो डॉक्टर बनना चाहता था, IAS KS इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अब टारगेट नीट आपके लिए ला रहा है कि यहां पर सिर्फ आप 20,000 में जो है अपना सपना जो है पूरा कर सकते हैं। नाज़रीन मतलब मजीद खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, और टारगेट नीट के हवाले से एक टूर जरूर आने वाले दिनों में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यहाँ के टीचरों से भी बात करेंगे, स्टूडेंट्स का फीडबैक भी लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल ये जो आप मटेरियल ये बच्चों के लिए हैं, और हम जो है ये मटेरियल उनको जो है यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो भी ये आप देख सकते हैं टारगेट नीट का जो है अपना, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा में से गुजारिश है कि आप पीछे जाएं आप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाज़ाब्ता तौर पे इस पे जो है, और यहाँ पर हर एक चीज़ जो है दस्तयाब है। और ये सिर्फ ये जो आपको ये बुक्स और मटेरियल, बैग वगैरह, ये आपको जो है सिर्फ इन्हें 20,000 में आपको मिल सकता है अगर आप टारगेट नीट आना चाहते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।